Alright, so in the last lecture we saw hydrogen spectrum which was given by Bohr's relation. हमने कल लीमेन सीरीज, बार्मेड सीरीज, पास्टियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पूर्ण सीरीज सब देखा. वी ऑल्सो सॉ कि कौन कौन से रीजन में आता है ये. लीमेन सीरीज इज इन यूवी रीजन, देन बाल्मेर इज इन विजिबल, ब्रैकेट लीमेन बार्मेड पास्टियन is in near infra, and then mid infra, and then far infrared. Okay, then we saw what is series limit, and then we also saw what is atomic spectrum, मतलब Rydberg formula. तो Bohr's formula में एक slight modification किया तो we get Rydberg formula which explains other atomic spectra as well. Okay, so now, and we saw yesterday what are limitations of Bohr's model. तो जैसे I told you yesterday, first limitation of Bohr's model is it could not explain the line spectra of atoms other than hydrogen. तो Bohr's model can only explain line spectra of hydrogen atom. उसमें भी वो जो मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं एक लाइन में, एक इमिशन लाइन में, व्हेन यू हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स, इवन दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स मॉडल. तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, दैट बोहर मॉडल कैन ओनली एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. उसमें भी अगर एक हाइड्रोजन लाइन में मल्टीपल कंपोनेंट्स आ गए तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, दीज आर हाइड्रोजन atoms के एनर्जी लेवल, and if this transition of electron from one level to another level, right, हमको ये सिंगल लाइन दिख रहा है, but when you do a deep analysis you may find that it is actually made up of two lines, double lines. So multiple lines could not, Bohr could not explain this existence of this multiple lines. तो ये था पहला drawback of Bohr's model. Then next thing is intensity of different lines was found to be different for some lines and which could not be explained by Bohr. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लेवल से, दो अलग अलग लेवल से ट्रांजिशन हो रहा है तो इनका इंटेंसिटीज अलग अलग आ रहा था. सो दिस डिफरेंस इन इंटेंसिटीज वाज नॉट explained by Bohr. So the intensities of emission lines seem to differ from line to line, and Bohr was unable to explain this. Good. Then, by the way, the stability of nucleus, not sorry, stability of atom था, as you remember, Bohr just said only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. So Bohr said this, and this is correct, this is not wrong, but he did not provide any theoretical proof for this. So ये just a statement था in the form of assumption, postulate that only those orbits are allowed, or only those orbits are stable in which electron has angular momentum as integral multiple of h upon 2 pi. तो ये तीन limitations थे. Then ये जो तीसरा limitation था, that Bohr could not explain कि why angular momentum has to be nh upon 2 pi for stability of nucleus, that was explained by de Broglie. So de Broglie explanation for this, right? So what de Broglie said, de Broglie ने ऐसा बोला कि when you consider electron in an orbit, in any orbit, and for this you need to remember स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन. आपको याद है क्या स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन? स्टेशनरी वेव्स का हमने जब थ्योरी किया था, याद है क्या? अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में हमने लगाई है, सो दिस स्ट्रिंग हियर, ये एक रस्सी है, राइट? देन
If I pluck it at the center, you get a wave which is going here. This is simple harmonic progressive wave traveling along positive x direction. फिर ये reflect होके वापस आएगा and you will get another wave, reflected wave, which is again simple harmonic wave traveling in negative x direction. और इन दोनों का सुपरपोजिशन के बाद you will get a standing wave. स्टेशनरी वेव बोलते हैं हम इसको. ये हमेशा स्टैंडिंग वेव ऐसा ही दिखेगा. इट इज अ स्टेशनरी वेव. तो व्हाट डू वी सी हियर? ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फंडामेंटल मोड बोलते हो, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हो इसको. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, याद होगा, नोड टू नोड डिस्टेंस वाज लैम्डा बाय 2. गुड. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में you have two loops, something like this, and length in this case is lambda 1 by nothing. क्यों nothing? लेंथ क्या होगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में? लैम्डा 1. क्यों? ये एक नोड है, ये एक नोड है, नोड टू नोड लैम्डा बाय 2, फिर वापस से लैम्डा बाय 2. तो दिस डिस्टेंस इज लैम्डा 1 by 2 and then this distance is again lambda 1 by 2. So total distance is lambda 1. Okay, good. So what do we notice here? Length is proportional to lambda, right? So length is integral multiple of lambda, ऐसा बोल सकते हो. तो what de Broglie said कि when an electron is in circular orbit, अभी कौन सा ऑर्बिट हम लोग बात नहीं कर रहे हैं उसकी, हम आगे बोलेंगे. So when an electron is in circular orbit, you need to treat electron as a wave and that will form a standing wave. तो अब ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो जैसे लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आया था, मतलब लेंथ इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आया था स्टैंडिंग वेव में, यहाँ पे भी वैसा होगा. अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट इज वन वेव लेंथ. वन वेव लेंथ मतलब you will have something like this. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा. It is difficult to show, so I'll do one thing. I'll just mark opposite points. It is really difficult to show. You cannot show anything here. So इसलिए let us not draw diagram for first orbit. Better I go for drawing second, third or fourth orbit. It's better thing to do. So let us do it for fourth orbit. Let us say अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट के लिए कर रहा हूं तो I should get 4 waves here. So I will have something like this. One wave, second wave, third wave and more or less मान लेना fourth wave. तो टोटल 4 waves आएंगी in short. तो अगर, because you know this is lambda distance, again truck to truck lambda, again lambda and again lambda. So there are 4 waves, right? So if electron is in fourth orbit, the length of the orbit, which is 2 pi rn. Why 2 pi rn? Because ये orbit होता है circular. This is equal to n lambda. So if you are in fourth orbit, so 2 pi r4 equal to 4 lambda. If you are in fifth orbit, 2 pi r5 equal to 5 lambda. If you are in third orbit, 2 pi r3 equal to 3 lambda and so on. तो डी ब्रॉगली ने बोला कि what you are supposed to do is to explain, you are supposed to just just a minute. Okay, so if you are in third orbit, so there will be 3 waves. If you are in fourth orbit, there will be 4 wavelengths. So in short, you will have from here, this is lambda n equal to 2 n upon 2 pi rn upon n. Okay, तो ऐसा आएगा वो. All right, good. Then
ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, आपको याद है कि एक मूविंग पार्टिकल को हम एज अ वेव ट्रीट करते हैं जिसका वेवलेंथ होता है h अपॉन मोमेंटम, ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था। और आपको याद होगा ये p होता है m इंटू वी एन। वेरी गुड। ओके, सो व्हाट कैन बी डन इज, अब ऐसा है कि दिस साइड and this side they can be compared because left hand side in both cases is lambda, so you can have h upon pn equal to 2 pi rn upon n. ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट pn is equal to nh upon 2 pi rn. Very good. Now do you know that angular momentum is mvr, लेकिन mv is linear momentum, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू आर, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज पी एन, पी एन इज एन एच अपॉन 2 पाई आर एन, और आर एन कैंसल कैंसल, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या मिला हमको, एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। तो बोहर्स मॉडल के 3 शॉर्टफॉल थे। पहला शॉर्टफॉल था कि बोहर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर सकता है, वो भी हाइड्रोजन के किसी लाइन में अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स मिले, मतलब एक लाइन है आप उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो यू सी 2 और 3 कंपोनेंट्स, तो बोहर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, व्हाई देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स। गुड। दूसरा शॉर्टफॉल था, एज आई टोल्ड यू, कि अलग अलग लाइंस का इंटेंसिटी अलग अलग मिल रहा था, so there were different intensities corresponding to different transitions, so this was also not explained by Bohr. And third जो शॉर्टफॉल था, जो ड्रॉबैक था, जो फेल्यूर था, बेसिकली लिमिटेशन भी बोल सकते हो, इज दैट बोहर सेकंड पोस्टुलेट टेल्स यू दैट only those orbit for electrons are allowed, or only those orbit are stable in which electron has एंगुलर मोमेंटम विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था, पोस्टुलेट था बेसिकली, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो दिस वाज एक्सप्लेन बाय डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस और इफ यू वांट टू प्रूव दिस, so what you have to do is you have to treat electron as a wave. So when electron is in orbit around a nucleus, you have to treat this as a wave and not as a particle, right? अब उससे क्या होगा, and he said that when you treat electron as a wave, you have to treat electron as a standing wave, मतलब वहां पे स्टेशनरी वेव जैसे देखा था आपने, स्टैंडिंग वेव देखा था, वैसे लूप्स बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एक ही वेवलेंथ होगा, बिकॉज यू नो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग was proportional to wavelength of the waves formed on the string, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एक वेव बनेगा, एक स्टैंडिंग वेव बनेगा, एक लूप बनेगा मतलब, और अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2, 3, 4 and so on. So if the electron is in fourth orbit, you will have 4 standing waves. So I'll just mark some points, थोड़ा easy कर देते हैं, just for the sake of drawing, थोड़ा easy करने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ ऐसा। तो ये हो गया एक वेव, ये दूसरा वेव, थर्ड and finally fourth. So you will have 4 wavelengths here if the electron is in fourth orbit. Okay, so which means that length of orbit, आपको पता है एक स्ट्रिंग को, एक रस्सी को मैंने अगर एक सर्कल बना दिया तो लेंथ बिकम्स 2 पाई आर, तो इट इज 2 पाई आर, बट एन, क्योंकि हम लोग nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एन लैम्बडा। वाई, मैंने अभी भी बताया, पहले ऑर्बिट में होगा तो एक वेव, दो में होगा तो सेकंड में होगा तो दो वेव्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यू विल गेट लैम्बडा एन एज 2 पाई आर एन बाय एन। ओके, गुड।
Then you know from de Broglie hypothesis that wavelength of a moving particle is given by h upon momentum, right? हम इन दोनों equations को equate कर देंगे, तो you will get h upon pn equal to 2 pi r n upon n. This is h here, तो यहाँ से आपको मिलेगा momentum pn as nh upon 2 pi r n. क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम इज pn into rn, बिकॉज mvr और mv होता है लिनियर मोमेंटम, तो nh अपॉन 2 पाई rn into rn, कैंसल कैंसल, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया nh अपॉन 2 पाई, हेंस दिस इज प्रूव्ड. मतलब बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था, इट इज एक्चुअली theoretically correct if you consider electron not as particle but as wave. Okay, good. So this is something new that you know now. Electron is wave when it is orbiting around nucleus, right? Good. So it is time to solve some questions. So let us solve first example 15.1. Calculate the radius of third orbit of electron in hydrogen atom. So you already know some basics. पहले तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, नहीं तो आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया था. मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इज जस्ट n equal to 3. You are supposed to find radius of third orbit, मतलब Rn basically. So you are supposed to find out Rn, which is R3, and you should know formula for this, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये that Rn is n times of R1. ऐसे था ये n square times of R1 था n square, तो n square times of R1. Very good. So do you remember value of R1? 0.3 0.53 something. So 0.531 if I am not wrong. I am just verifying for you because it was 0.531. 0.529 दिया है some books में और some books में 0.53 दिया है. So I need to verify. I don't know. We will verify. So simple solution है. हमको R3 find करना है तो 3 square R1 आएगा, right? So it is 9 times of R1. But R1 की value according to what new book is saying is 0.53 angstrom. Doesn't matter. 0.53 angstrom को convert करना पड़ेगा. आप आंसर आप angstrom में लिखो, नैनोमीटर में लिखो, चलता है. So you can write 9 into 0.53 angstrom. So you will get what is R3. So R3 is simply 9 into 5, 4 point something, 4.77, 4.77 angstrom. ये आ गया आंसर. Okay, let's do next question. Determine the energies of the first two excited states of electron in hydrogen atom. What are the excitation energies of the electrons in this orbits? So you are supposed to find out energies of first two excited states of hydrogen atom and what are excitation energies. So I would like you to try it out now. So it's a very simple question. First of all मैं आपको थोड़ा सा theoretical background बता देता हूँ. Nucleus, then first orbit, then second orbit, and then third orbit, then fourth orbit, so on so forth. हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी लेवल्स नहीं है. देयर आर एनर्जी लेवल्स बट दे आर एम्प्टी, राइट? अब जो सेकेंड ऑर्बिट होता है
उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जो थर्ड ऑर्बिट होता है दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो इन शॉर्ट आपको सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए बोला है, राइट। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, हमको पता है En इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर, राइट। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2 डालोगे और थर्ड के लिए n इक्वल टू 3 डालोगे। गुड। अब एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स। मतलब मुझे अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ले जाना है तो हाउ मच एनर्जी हैव टू सप्लाई, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, एंड हाउ मच एनर्जी यू हैव टू सप्लाई इज द डिफरेंस। क्योंकि जब 2 से 1 आएगा तो वो E2 माइनस E1 रेडिएट करेगा, इमिट करेगा। जब 1 से 2 जाना है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करेगा। इज इट क्लियर? तो एक्साइटेशन एनर्जी मतलब पहले से तीसरे ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में ले जाना है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, तो जितना एनर्जी लगेगा दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। फर्स्ट से थर्ड में तो जितना एनर्जी लगेगा दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। इजी है, सो लेट अस नोट इट डाउन। All right, so what we are supposed to find out is, हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकेंड ऑर्बिट तो E2 फाइंड करना है, एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट मतलब E3 फाइंड करना है। देन व्हाट आर एक्साइटेशन एनर्जीज, सो excitation energy for first excited state, excitation energy for first excited state, that is E1 minus E2, ये फाइंड करना है, ओके। एंड दैट ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट E1 minus E3. Good. So let us solve this directly. So to find out E2, E3, we will say we know that energy of electron in nth orbit is minus 13.6 by n square eV. So E2 is minus 13.6 by 2 square. That turns out to be how much? कितना है? 3.4 minus 3.4 eV, and E3 is minus 13.6 by 3 square, that turns out to be minus 1.51 eV. And then in the second part of the question you're supposed to find out just excitation energy, that is E1 minus E2 mod. तो mod of E1 minus E2 फाइंड करना पड़ेगा, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी, अभी आपको पता है E1 क्या है, E1 की वैल्यू -13.6 होती है, E2 की वैल्यू 3.4 है, -13.6 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10.2 EV आएगा ये, राइट। सिमिलरली E1 माइनस E3, 13.6 माइनस 1.51 कितना आता है, 12.09, ओके 12.09 EV आता है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज हाउ यू वर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। बहुत सिंपल सा केस था, नथिंग, समझे क्वेश्चन। तो if I ask you to find out energy of third excited state and excitation energy, फाइंड कर पाओगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट, 4 E4, तो -13.6 upon 4 square, that turns out to be 0.81 eV, I guess. Okay, good. Next question.
Calculate the wavelength of first three lines in Paschen series of hydrogen atom. मैंने आपको कल रफली बताया था कि it turns out to be in near infrared, मतलब ये अराउंड कुछ 15-16,000 से अराउंड 30,000 के बीच में आता है, कुछ समथिंग लाइक दैट. So let us do it then. So you are supposed to find out first three lines, है ना. आपको वेवलेंथ निकालना है मतलब आपको फाइंड करना है. यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था, पहले लाइन को बोलते हो आप अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा. तो यहाँ पे आपको अल्फा बीटा गामा लाइंस निकालने हैं. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट लैम्डा, लेट अस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, या फिर लैम्डा अल्फा, लैम्डा बीटा एंड लैम्डा गामा, राइट. एंड डू यू रिमेम्बर formula was 1 by lambda equal to Rydberg constant R. 1 by Paschen है तो थर्ड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होता है, लीमैन बाद में पास्चेन, थर्ड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होता है यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस बाय n स्क्वायर, वेयर n विल बी 1, मतलब n1, क्योंकि तीन लाइन बोले हैं तो n1 will be 1, and then you put n2 2, so you are supposed to put 1 2 and 3 1 by 1, है ना. हाँ बोल रहे हो, थर्ड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होने वाला है तो हायर ऑर्बिट से होगा वो जितनी ज्यादा, मतलब 4 5 6 से. तो ट्रांजिशन शुड बी फ्रॉम 4 5 एंड 6. तो ये गड़बड़ नहीं करना, वो उल्टा हो गया. ऐसा कैसा ट्रांजिशन, मतलब एनर्जी शुड बी एब्जॉर्ब्ड, इमिट नहीं होगा, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. ओके. तो पास्टेन सीरीज में थर्ड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. सो इट इज सिंपल. सो आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग. गुड. अभी कैलकुलेशन का ही यहाँ पे प्रॉब्लम होता है. सो एक काम करो, जस्ट टू टेल यू अ वेरी सिंपल वे. अब जब आप पहला केस सॉल्व करोगे 1 by lambda 1, you will be putting value of r here 1.093 या 97, है ना, depends on, I think you should be using 1.097, okay, into 10 power 7. 1 by 3 square minus 1 by 4 square ऐसा आएगा पहले केस में, राइट. तो 1 by lambda 1 मैं r की वैल्यू फिलहाल सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ. 16 minus 9 7, है ना, अपॉन 16 into 9 144, राइट. तो जब मैं लैम्डा 1 फाइंड करूंगा that will be 144 by 7r. अब what I want you to do is, आप एक बार रेसिप्रोकल निकाल के रख दो 1 by r का, and that will help you in all the calculations. okay. तो आपको हर जगह पे उस लगने वाला है. तो you just have to find out what is 1 by r, and r is 1.09 into 10 power r. What is r, by the way? What is r? 1 point, okay, 1.097 into 10 power plus 7, बराबर. जब आप 1 by r करोगे तो ये 1 upon 1.097 10 power 7 ऊपर जाके -7 होगा. तो सिर्फ आपको 1.097 का रेसिप्रोकल देखना है. तो I'll tell you what is the reciprocal of this. So 1 by 1.097, तो ये आपका आ गया 1 by r equal to 0.9115 into 10 power -7. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ एंड देन फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर. So lambda 1 will be equal to 144 by 7 into 0.9115 into 10 power -7 meter. So this turns out to be
18.75 इंटू 10⁻⁷ मीटर। आप अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आप नैनोमीटर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो लैम्बडा 1, जस्ट अ मिनट, यू नीड टू पे अटेंशन हियर। इफ यू राइट इट इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर तो कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि नैनोमीटर में 1875 नैनोमीटर आएगा। तो एक पॉइंट हटा लूंगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो 2 डेसिमल यहाँ पे 9 होगा। तो दैट इज इक्वल टू 18750 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया बराबर जहां हमको चाहिए था। फास्ट चेन वाज इन विच रीजन? इंफ्रारेड। तो आ गया इंफ्रारेड में, यस। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट लैम्बडा 2 वेरी इजीली नाउ। लैम्बडा 2 में सिर्फ क्या आएगा, पहले आप 1 बाय लैम्बडा 2 कर लो। 1 बाय लैम्बडा 2 विल बी आर, यस, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 25। तो this will be 25 minus 9 is 16 or 225, yes. So this will be 16 by 225, मतलब 225 by 16 r। तो ये आ गया 225 by 16 और 1 by r की वैल्यू हमने निकाल के रखी है 0.9115 into 10⁻⁷। This is -7. So 225 by 16 into 0.9115, that is 12.817 into 10⁻⁷, मतलब that is 12817 एंगस्ट्रॉम। और ये भी करेक्ट है, इतना आना ही चाहिए, बिकॉज अगेन इट इज इन नियर आईआर, तो नियर आईआर में ही आएगा ये। ओके गुड। तो नियर आईआर वाज अराउंड 7000 टू समथिंग, तो वो वैल्यूज मुझे याद नहीं एग्जैक्टली अभी। सिमिलरली व्हाट विल बी लैम्बडा 3? 324 by 25 r। सो ये आएगा 324 by 25 into 0.9115, ये आएगा आपका 11813 एंगस्ट्रॉम after solving. Okay, so this is what you should be getting. If it is 324 by 25 r, 1 by 9 minus 1 by 36, 36 my 1 by 9, 4 5 6, 1 by 9 minus 1 by 36, 36 minus 9 is 27, 27 आएगा नीचे यहाँ पे। So you will have a 27 over here. So this will be 324 divided by 27, मतलब 12 into 0.9115, तो 10938. So this answer will be 10938 angstrom. 10938 angstrom. Okay, good. So all of these values are in near IR, मतलब the solutions are correct. Then we are moving to unsolved questions now, exercise questions from your book. Determine the series limit of Balmer pass chain phone given the limit series of Leibniz 912. So determine the series limit of Balmer pass chain and phone series given the limit of Leibniz series S. तो सबसे पहले सीरीज लिमिट क्या है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। You should know, it is very simple thing. सीरीज लिमिट क्या होता है? Maximum energy difference and minimum wavelength is series limit. तो you should know, मैंने कल ही बताया था, सीरीज लिमिट 1 by lambda is equal to r, है ना। 1 by किसका बोला? लीमेन सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ होता है? p इक्वल टू 1 पे, माइनस कहां से होता है? इंफिनिटी से, राइट। तो 1 by इंफिनिटी इज 0, मतलब आपको इनफैक्ट आपको क्या दिया है? आपको दिया है यहां से लैम्बडा इक्वल टू 1 by r,
जो हमने ऑलरेडी किया था। देखो ये हमारा 911 एंगस्ट्रॉम आया था, इनने इसको 912 बोला है, दैट्स इट। सो दे आर बेसिकली गिविंग यू 1/r वैल्यू, दैट्स इट। All right. So first of all, this will be the last question for the day. I will delete this one from here. Then what is given to you is lambda series limit for Lyman series is 1/r आता है, हमने अभी भी देखा कैसे आता है, that is 912 angstrom. This is given to you. Then you are supposed to find out series limit for Balmer Paschen Wood. So you're supposed to find out Lyman series for Balmer. Okay, Lyman series, series limit for Paschen lambda PA, and you're supposed to find out series limit for Fund series PF. Formula you already know in any case. देखो मैं आपको जनरलाइज करके देता हूँ फॉर्मूला सीरीज लिमिट के लिए। तो 1 सीरीज लिमिट, ये सीरीज लिमिट है तो मैं इसको SL लिख देता हूँ, इज ऑलवेज इक्वल टू R 1/just p², क्योंकि ट्रांजिशन तो हमेशा इंफिनिटी से होता है तो वो 0 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब सीरीज लिमिट इज इक्वल टू p²/r होता है। इफ यू नो दिस, तो अब if you want to find what is series limit of bracket बोला है, बालमेर बोला है, सॉरी, फॉर बालमेर, तो सीरीज लिमिट फॉर बालमेर में ट्रांजिशन होता है 2 लेवल पे, तो 2² r है ना, 1/r इज 912, मतलब 4 into 912 3600 और 48 3648 angstrom. Then for Paschen, Lyman बाद में Paschen, p की वैल्यू 3, 9 क्योंकि 3²/r, तो 9 into 912, 9 into 912 8208 angstrom, है ना। और हाउ डू वी नो इफ यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट? बालमेर सीरीज विजिबल रीजन में होता है, विजिबल है ना, 3000 से 7000 के बीच में। देन Paschen is in near infrared 8200, it is in near infrared, तो ये भी करेक्ट है। Then Fund is in far infrared, तो Fund सीरीज में कहाँ होता है ट्रांजिशन? 5 पे होता है, तो 5²/r मतलब 25 into 912 32800, तो ये आ गया आपका करेक्ट, right? So 25 9120 9120 and this 25 into 912, so 25 into 912 228 आता है वो 22800, तो you should be getting this values। अभी हमारा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मतलब इन्होंने शायद as it is my case बालमेर, पास्टेन और ब्रैकेट, तो इन्होंने ब्रैकेट के लिए फाइंड करके रखा है, so it's okay, so we have done nothing wrong, that is correct, their answers are not matching with us, no issues, so just remove this from here। 14592 आ गया ना, तो 14592, तो वो उन्होंने बेसिकली ये भी, in fact these are also wrong values that they are giving, this is wrong values, so there are misprints in the book, so no issues, so this is how you are supposed to find out। ओके तो अभी याद रहना चाहिए कि 1/r की वैल्यू कितनी, 912 एंगस्ट्रॉम। अगर वो हमको यहाँ पे याद होता तो देखो अब कितना इजी होता, 144/7 into 912, तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाती। गुड, ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे।